member National Assembly شرمیلا فاروقی صاحبہ. ہمارے ساتھ جناب موجود ہیں روبینہ بروہی صاحبہ جو کہ چیئرپرسن سندھ کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن ہیں. ہمارے ساتھ فاطمہ آغا موجود ہے کہ جو اسپرچل ہیلر ہیں, اور ساتھ میں ہمارے ساتھ اسما جاوید ہیں, ایڈوکیٹ ہیں, اور ہمارے شو کا اکثر حصہ بھی بنتی ہیں. میں آپ تمام تر خواتین کو اپنے شو میں خوش آمدید کہتی ہوں, اور یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے, کیونکہ جو خواتین دیکھ رہی ہیں وہ یہ نہیں کہ لوور طبقے کی خواتین ہو, جو پڑھی لکھی بااثر خواتین ہیں وہ بھی سمہاؤ اس کا شکار بن رہی ہیں. اینڈ شرمیلا, تھینکس ٹو یو, آپ کی کوششوں کی وجہ سے یہ بل نہ صرف کہ قومی اسمبلی میں منظور ہو بلکہ سینٹ سے بھی منظور ہو گیا ہے. اب عام لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بتا دیں کہ ایک عورت کو جو گھر میں اس وقت ہے اور جو گھر سے باہر بھی اس کا کام کر رہی ہے, اس کو اس سے کیا فائدہ ہوگا, کتنا تحفظ ملے گا اس سے؟ تھینک یو مدیحہ. ڈومیسٹک وائلنس, یہ جو گھریلو تشدد کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آئی تھنک ہم جتنی بھی خواتین یہاں بیٹھی ہیں یا تو ہمارے ساتھ کہیں نہ کہیں, اور گھریلو تشدد کا مطلب یہ نہیں کہ جسمانی طور پہ کہ صرف جو نشان نظر آتے ہیں, جو مار پیٹ ہوتی ہے وہی تشدد ہے. معاشی طور پہ اگر ایک خاتون پڑھی لکھی ہے, فار ایگزامپل ڈاکٹر ہے, شادی کر کے آتی ہے, لیکن اس کے گھر والے چاہے وہ ساس سسر ہوں یا میاں ہوں اس کو پریکٹس نہیں کرنے دیتے, تو دیٹ از اکنامک ابیوز. کہ آپ اگر وہ کام کرتی, پیسے کماتی, امپاور ہوتی, لیکن آپ نے اسے جبرن آپ نے کہا کہ جی یو ناٹ الاؤڈ, تو وہ گھر بیٹھ گئی ہے بیچاری. یا جب آپ اس کو دے بھی نہ رہے ہو پیسے, اور جب آپ اس کو دے بھی نہ رہے ہو پیسے, کم پیسے دے رہے ہو, یا اس کی نیسیسٹی کے مطابق اس کو پیسے نہیں دے رہے ہیں, یا فار ایگزامپل گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں اور بچے جو ان کا بیٹا ہے یا بہو ہے ان کے میڈیکل ایکسپینسز پورے نہیں کر رہے, یا ذہنی طور پہ ان کو زد و گوب کر رہے ہیں, باتیں سنا رہے ہیں, تانے دے رہے ہیں, دیٹ از آلسو اکنامک ابیوز اینڈ سائیکولوجیکل ابیوز. یا اگر کوئی عورت بچہ نہیں پیدا کر پا رہی, فار ایگزامپل بچے تو دور کی بات ہے, بیٹا نہیں پیدا کر پا رہی ہے اور اس کو مسلسل تانے دیے جا رہے ہیں, دیٹ از سائیکولوجیکل ون آف دا ایریاز آف سائیکولوجیکل ابیوز, جو ہمارے ملک میں کئی خواتین اس سے گزرتی ہیں. یا کسی نہ کسی وجہ سے مستقل آپ کا میاں آپ پہ شک کر رہا ہے, تانے دے رہا ہے, موبائل فون چھین رہا ہے, بند کر رہا ہے, بہت ساری چیزیں نا, اٹ کوڈ بی اینی تھنگ. بالکل. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اب وہ تشدد کے زمرے میں آتی ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی زندگی کے کسی سٹیج میں یا ہم اس سے گزرے ہیں یا ہم کسی جو ہمارے ارد گرد جو ہیں ان کو جانتے ہیں. سو دس از سم تھنگ دیٹ ریزونیٹس وتھ اس. وی نو کہ یہ کیا ہے اور اس سے آپ کتنے کرب سے گزرتے ہیں. اب جو یہ قانون آئے, ہم 2013 میں روبینہ واز یو نو سوشل ایکٹیوسٹ, کام کرتی تھی عورت فاؤنڈیشن میں, اور میں سندھ اسمبلی میں تھی. مجھے یاد ہے کہ ہم نے اس بل پہ ہم نے اس وقت کام کیا تھا, لیکن اس بل میں سائیکولوجیکل ابیوز یا اکنامک ابیوز یا سیکشل ابیوز یہ چیزیں نہیں تھیں. اس زمانے میں 2013 میں تصور بھی نہیں کیا جاتا تھا. اس وقت ڈومیسٹک وائلنس واز مار پیٹ. اب تو گالم گلوچ, اس وقت یہ بھی نہیں تھا کسی نے گالی دے دی یا کسی نے, وہ بھی تصور نہیں کیا جاتا تھا. لیکن ناؤ اب جو میرا آئی سی ٹی والا بل ہے جو دیٹ از فار اسلام آباد, کیونکہ آئی کین لیجسلیٹ فار دا کیپٹل, اس میں میں نے تمام چیزیں ڈالی ہیں. اور جب یہ جیسے آپ نے گالم گلوچ کے والے سے بات کی, تو میرے خیال سے گالم گلوچ سے تو شاید ہی کوئی خاتون ایسی ہو جو کہ محفوظ ہو. اس وائلنس کا شکار تو ہر عورت ہو رہی ہے. اور تانے تو کہیں نہ کہیں عورت کو کبھی نہ کبھی زندگی کسی سٹیج میں کہیں ملتے ہیں, یا بھائی سے مل رہے ہیں, یا میاں سے مل رہے ہیں, یا ساسو سر سنا رہے ہیں. یہ چیزیں یو ہیو گون تھرو دیز تھنگز ان لائف. لیکن اس وقت اب جب یہ قانون بن گیا ہے, پریزیڈنٹ صاحب کا سگنیچر رہ گیا ہے, جب یہ قانون بن جائے گا تو پھر اس میں ہر چیز کی سزا مرتکب ہے. 3 سال تک آپ کو سزا مل سکتی ہے. اچھا, یہ تاثر دیا گیا کہ صرف خواتین کے لیے ہے, نہیں, دس از فار مین, دس از فار چلڈرن. سوتیلا بچہ آپ کے گھر میں ہے, سوتیلی ماں, فار یور ڈاٹرز. آپ دیکھیں نا, بھائی قتل کر رہے ہیں بالکل بہنوں کے. ابھی جی وہ ویڈیو کنٹینٹ کے شیز میکنگ کنٹینٹ آن ویڈیو, وی ہیو سین کیسز جو سامنے آئے, اور یہ وہ کیسز ہیں جو رپورٹڈ ہیں. اچھا, ایزی ٹارگٹ ہے نا. ابھی دیکھیں نا جو گلشن کا بھی جو واقعہ ہوا ہے کراچی میں, تو اس میں جو پہلے مارا گیا ہے وہ پہلے بہو کو مارا گیا, بیٹی کو سب سے پہلے تو مارا ہی ان کو گیا ہے جی, کہ آپ جی لون ادا نہیں کر پا رہے جو آپ نے لیے ہوئے ہیں, اور آپ نے کہا جی چلو ٹھیک ہے سب کو مارتے ہیں, لیکن سب سے پہلے آپ نے عورت کو مارا, بیکاز وہ ایزی ٹارگٹ ہے. ہاں, وہ ایزی ٹارگٹ ہے, تو آپ نے اس کو مار دیا. اینڈ دیٹ از سو انفارچونیٹ. سو یہ اب مدیحہ میں یو نو میں اس پروسیس جس سے میں گزری ہوں, میں اس کے بارے میں بھی بات کروں گی آگے جا کے,
कि हाउ डिफिकल्ट इट वाज oh my God, must be very गेट challenging. थ्रू दिस बिल, बिकॉज मुझे तो लोग आके कहते थे कि आप तो तलाक़ें करवा देंगी, एग्जैक्टली कि आप तो ये चीज़ें जो डाल रही हैं तो आप तो यहाँ आई वॉज ऑन कपल ऑफ शोज़ ऑल्सो, मैं इवनिंग के टॉक शोज़ होते हैं तो उसमें मुझे एक बहुत अच्छे मेरे एंकर हैं और शो के एंड में उन्होंने कहा, जो दूसरे गेस्ट बैठे थे मर्द थे, उन्होंने कहा जी ये तो शर्मिला फारूकी बिल है, आपने भी उसे सपोर्ट किया है, अब आप तो अगर अपनी बीवी को डांटेंगे तो वो तलाक ले लेगी आपसे। Oh my God. सो ये भी हुआ, यू नो, मतलब अगले ने बाज नहीं आना, नहीं। अब उस पर डाल रहे हैं कि वो औरत आगे, क्योंकि शो के स्टार्ट में ना हम शो मेकअप में मैं और असमा यही बात कर रहे थे कि जी अक्सर लोग जो ये बात करते हैं जी कि खुला के जो केसेस हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ क्यों गए हैं, तो उसमें आप एक चीज़ ये भी तो देखें कि जो पहले की ख़वातीन होती थी वो डिपेंडेंट इतनी होती थी कि वो घर छोड़ के जा नहीं सकती थी, तो उन पे जो अब्यूज़ हो रहा है। एंड मैंने अब कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट पे देखा, उसमें गुफ्तगू हो रही थी कि एक तो खुदा के लिए छोड़ दें ये जो अपनी माओ पे होने वाले मेंटल अब्यूज़ का जो इतना ग्लोरीफाई करते थे ना, कि कहते थे तुम्हें क्या पता कि 30 साल उन्होंने ना बड़े सब्र वाली औरत थी भाई, 30 साल उसने इतने सख्त मियाँ के साथ गुजारा किया और हम उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। मतलब हम अपनी नस्लों को बता रहे हैं कि आपने सब्र करना है, वो मार रहा है, तुम अच्छी औरत ही तब साबित होगी जब तुम चुप करके बैठोगी। तो ये जो हम दिमागी तौर पे हम परवरिश कर रहे हैं अपनी बच्चियों की, ये कह के कि बेटा अगर तुम सब्र करोगी, अगर तुम कोई बात नहीं, तुम मार भी खा लोगी, तुम चुप कर जाओगी, तुम पर्दापोशी करती रहोगी तो तुम अच्छी होगी। जिस दिन तुमने जबान खोली उस दिन तुम्हारा शुमार बुरी औरतों में हो जाएगा। जैसे हम आजकल देखते हैं कि कोई औरत अगर अपने हक के लिए या उसको मार पड़ी है, वो फिजिकल अब्यूज़ के शिकार है, वो मेंटल अब्यूज़ है उसका, या उसको चीट कर रहा है, कुछ भी है, और अगर वो जाके अगर तलाक लेती है, यही बुरी औरत है। So women were silenced for the longest time, and even today a lot of women, you know, are silent. वो कहती नहीं, सब बस सब्र शुक्र करके ठीक है, मर्द होती ऐसे गुजारा करना पड़ता है, औरत को ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हमने अक्सर सुना है ना, यही सुना है। इट्स अ वेरी कॉमन स्टेटमेंट, औरत को ही कॉम्प्रोमाइज। और कॉम्प्रोमाइज किस शक्ल में? मियाँ ने जलील कर दिया, मियाँ ने पैसे रोक लिए, मियाँ ने थप्पड़ मार दिया, एंड वी सीन दिस बीइंग ग्लोरिफाइड इन आवर ड्रामास आल्सो। हमने देखा है ये लोग सीखते हैं। वही औरत तो अच्छी दिखाई जाती है कि देखो ये कितनी अच्छी औरत है। घर चलाना औरत का काम है, औरत को खामोश होना चाहिए, कुछ सब्र कर लो, इंतज़ार कर लो, सास ने कुछ कह दिया सब्र कर लो, इंतज़ार कर लो। मैं ये नहीं कह रही कि सास ने कोई एक आधी चीज़ कह दी तो आप केस फाइल कर दें, आई एम नॉट सेइंग दिस, बट एक कंटिन्यूस, एक तसलसल के साथ जो आपकी साइकोलॉजिकल अब्यूज चलता जाता है, विच मेंटली ड्रेन्स यू हैव एट द एंड ऑफ द डे आपकी कोई सेल्फ एस्टीम नहीं रहती है, आप बिल्कुल मफलूज होके रह जाते हैं। दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। यस बिल्कुल। देखिए रुबीना जी, आप और जैसे असमा भी इतने अरसे से इस वाले से काम भी कर रहे हैं, वो केसेस लड़ी हैं, आप भी ख़वातीन के जैसे केसेस लड़ी हैं, इतनी आगाही पे बात हो रही है, हम ड्रामा में बात करें, हम शोज़ में बात करें, हम अखबारों में बात करें, सेमिनार्स, दुनिया जहान के सेमिनार्स हो रहे हैं, येट हम देख रहे हैं कि केसेस ख़त्म नहीं हो रहे। क्या वजह लगती है, क्यों केसेस हमारे ख़त्म नहीं हो रहे? और दिन ब दिन अगस्त जो स्टार्ट्स भी बता रही वो केस तो बढ़ते चले जा रहे हैं। एग्जैक्टली लॉज हैं, लेकिन लॉज की इंफॉर्मेशन जिस लेवल तक होना चाहिए उस तरह से नहीं है। देखिए बड़े बड़े शहरों में तो ये चीज़ें पता हैं, जो पढ़े लिखे बच्चियाँ होंगी उन लोगों को इन चीज़ों का पता है, लेकिन अगर आप गांव गोठों में जाएं तो उनको शायद इतनी अपनी राइट्स का पता नहीं है। तो ये ग्रास रूट लेवल से, कम्युनिटी लेवल से हमें ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचानी है, बहुत मुश्किल है। अच्छा लेकिन माफ़ कीजिएगा आपकी कथा कलामी की माज़रत, क्या इंसेस्ट रेप वो भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर ही आ जाता है? ये रेप का अलग से भी कानून अलग से भी जी अलग से भी ठीक है जी जी उसका सेक्सुअल अब्यूज मैंने डाला है इसके अंदर। तो एग्जैक्टली ये है, हम अगर गांव देहात की बात करें तो बच्चियां गुजरती हैं सेक्सुअल अब्यूज से बहुत। लेकिन मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहूँगी कि शर्मिला हमारे सिंध वाले में भी साइकोलॉजिकल अब्यूज़ है शामिल। एक्चुअली ऐसे हुआ था कि 5 बिल उस वक्त जमा किए गए थे डिफरेंट पार्लियामेंटेरियंस के साथ, फिर एक कंसेंसस बिल हुआ था और उसके बाद एक ड्राफ्ट बनाकर जो कि गवर्नमेंट की तरफ से पेश किया गया था। और तब भी जैसे शर्मिला साहिबा कह रही थी कि एक माइंड सेट था वहाँ बैठा हुआ, और हमें भी यही सुनना पड़ा कि आप तो तलाक़ें करवा रही हैं, आप तो घर छोड़, तो आप बाहर के एजेंडा पर चल रहे हैं, ये चीज़ें थी। यही कहा जाता है, बिल्कुल इस तरह से। लेकिन वक्त के साथ साथ अब जो हैं वही लोग कहते हैं कि नहीं आप लोगों ने बहुत अच्छी चीज़ें की हैं, कवानीन हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन में हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उनकी इंफॉर्मेशन
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी पड़ेगी ताकि लोगों को पता हो। बच्चियां हैं, उन्हें अपने राइट्स का अगर पता नहीं होगा तो वो उसके लिए उठेंगी कैसे? बिल्कुल। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी डिसेमिनेशन होगी, और कमीशन के लेवल पर मैं ज़रूर ये करूँगी, मैंने यही सोचा है कि हमें अपर से नहीं, ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करना है। आप वहाँ से जाएं, आप बैठें, आप ऐसे गाँव में जाएं, उनके साथ बैठें, उनको अपना कॉन्फिडेंस दें। देखें, वो खवातीन जो हैं उन्हें नहीं पता, और वो कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा? कोई आपके एक दफ़ा जाने से, वहाँ कोई इवेंट करवाने से नहीं होगा। जब आप उनमें पेनिट्रेट करेंगी, उनके साथ बैठेंगी, उनका कॉन्फिडेंस लेंगी। ये हमने एक्सपीरियंस किया था जब तो निसाब में भी डालने की ज़रूरत है, क्योंकि आप छोटे से बच्चे की परवरिश ही ऐसे करें कि उसको बताएं कि बेटा जहाँ पे आप उसको गलत और सही का बता रहे थे, उसको ये भी बताएं कि ये चीज़ भी गलत है। ये अब सिंध ने इनिशिएटिव लिया है, यस, सिंध गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, और ये नसाब में भी डलवाया गया है ये बड़ा कि जीबीवी के हवाले से कि और जिस तरह से ह्यूमिलेट किया जाता था बच्चियों को, लड़कों को आगे किया जाता था, वो शो किया जाता था। मैंने एक ऐड देख रही थी मैं, तो मेरी बेटी मेरे साथ थी, उसमें वो बच्चा भागता हुआ आता है, दूध का गिलास पीता है और चला जाता है, यानी कि उसको स्ट्रांग दिखा रहे हैं। व्हाई नॉट अ गर्ल? और ये वो मेरी 4 साल की बेटी ने कहा, मम्मा क्यों ये दूध क्या लड़कियां नहीं पीती? यानी कि ये देखे ना कि आप जो टीवी पर भी दिखा रहे हैं, उसको ज्यादा स्ट्रांग होने की जरूरत है वैसे लड़की को आपकी। हाँ, जिसमें एक आपकी वो स्ट्रांग होगी तो बड़ी होगी, वो सिर्फ एक नस्ल जो है उसने परवान चढ़ानी है। और देखिए, हम निसाब में भी जितना ऐड कर लें, जब तक बच्चा अपने घर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखेगा, कोई फायदा नहीं होगा। वो बुक्स में पढ़ रहा है कि जी औरत का एहतराम करना है, वो दिख रहा है मेरी माँ तो रोज गालियां सुन रही मेरे बाप से, मेरी माँ तो रोज रो रही है। तो वो आप खुद सोचें ना कि फिर वो बच्चा उसका क्या इम्पैक्ट लेगा। इतने सालों से अस्मा आप केसेस लड़ रही हैं, नौयत में कोई तब्दीली आई है डोमेस्टिक वायलेंस की, और क्या क्या चीज़ें मैं चाहती हूँ जरा खुल के भी जरा बताएं कि क्या क्या चीज़ें और ऐड होगी में डोमेस्टिक वायलेंस। अच्छा, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में मैं उस टाइम से ये केसेस कर रही हूँ जिस वक्त कोई नहीं करता था। यानी देयर वर टाइम्स कि मैं अकेली वकील होती थी जो कि वो केस चला रहा होता था। इवन जजेस को समझ नहीं आ रही होती थी कि आप बीबी बात क्या कर रही हैं, ठीक है। और एक खातून एडवोकेट तो ज़्यादा मुश्किल होता होगा, ठीक है। सो अब अच्छा, साइकोलॉजिकल अब्यूज उसके अंदर है, उसके अंदर और 2-3 चीज़ें हैं। आपको मैं मज़े की बात बताऊँ, मर्दों को एक जुमला बोलने का बड़ा शौक है, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। एग्जैक्टली वो है। अगर एक डाइवोर्स का थ्रेट है, आप कंप्लेंट कर दीजिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के ज़ुमरे में आती है। दूसरी चीज़ उसके अंदर ये है, एक खातून है, किसी भी वजह से मियाँ से अनबन हो गई है, मैके शिफ्ट हो गई हैं, या कोई भी सिचुएशन है, साथ भी रह रहे हैं। एक प्रैक्टिस हमारे यहाँ मर्दों की ये है, उनकी वर्क प्लेस के ऊपर जाके पहले फ़ोन कर रहे होते हैं, वर्क प्लेस पे जाके मैं हंगामा करूंगा, तुम निकाली जाओगी। आई हैव कम अक्रॉस एजुकेटेड पीपल जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज और हाई फाई हॉस्पिटल्स के अंदर जाके बीवियों को हरास कर रहे होते हैं कि मैं यहाँ शोर शराबा करूंगा, लोगों को मैं तुम्हारी असल विजिटिंग द वर्क प्लेस अगेन इज डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, आप कर ही नहीं सकते। exactly. ठीक है, exactly. अच्छा, अब ये बात मजे की ये है कि लोगों को पता ही नहीं थी। अब मैं तो चूंकि प्रैक्टिस में थी तो मैंने 3-4 केसेस ऐसे फाइल किए, उसके बाद लोगों को पता चला कि ये सिर्फ आप जो जबान से धमकी दे रहे हैं ना तलाक की, exactly. आपने एक दफा कह दिया, बात आई गई हो गई, और औरत सुन के क्या बोलती है, कोई जवाब तो देती नहीं है, तो डर जाती है कि तो और खामोश हो जाती है। क्या है, आपको स्टैंड लेना है, बिकॉज अगर आप हाथ रोकेंगे नहीं तो वो हाथ उठेगा आपके ऊपर। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल आपको अकाउंटेबिलिटी का फेयर नहीं होगा, आप हर बड़े से बड़ी हरकत। अच्छा, 2 चीज़ों से इंसान डरता है, चाहे मर्द हो या औरत। एक, अपने से ज़्यादा ताकतवर के ऊपर कभी हाथ उठाएगा नहीं है, उसको हरास नहीं करेगा, और दूसरा, जहाँ उसको पता हो कि ये हाथ रोक लेगा। ठीक है ना। तो शुरू में मैं जब ये बात कर रही होती थी तो बहुत से मैजिस्ट्रेट्स मर्द भी थे, खवातीन भी थी, उनको तो समझ ही नहीं आ रहा होता था कि बीवी क्या। तो हम उनके साथ बैठ के पूरा डिस्कशन करते थे कि ये लॉ है और अब आपने इसमें ये ऑर्डर करना है, और ऑर्डर आपको एज पर लॉ करना है ऑन द मेरिट ऑफ इट, नॉट कि मैं आपसे कह रही हूँ लॉ में ये प्रोविजन दिया गया है। तो हमने सबसे पहली चीज जिसका फायदा उठाया वो मर्द जो कि अपनी बीवी को हरास कर रहा है, वर्क प्लेस पे आ रहा है, धमकियां दे रहा है, बच्चे को अगवा कर लूंगा, बच्चों को छीन लूंगा, कस्टडी ले लूंगा। फाइनेंशियल अब्यूज किस तरह से होता है, एक तो नौकरी ना करने देना, दूसरे खर्चा ना देना, तीसरा सबसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैं तुम्हारे बच्चों की स्कूल फीस नहीं दूंगा। भाई वो तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, वो तुम्हारे भी बच्चे हैं। लेकिन औरत को सबसे बड़ा फेयर ये होता है कि मेरे बच्चों की स्कूल फीस बंद कर देगा। तो मैं क्लैरिफाई करती हूँ, भाई उसके भी बच्चे हैं, स्कूल फीस वो बंद करके देखे, हम जाएंगे। फैमिली कोर्ट में जो हमें रिलीफ मिलनी है वो अलग है, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर फाइनेंशियल रिलीफ्स भी हैं। और वेस्ट में तो चीज थोड़ी एक स्टेप थोड़ी ये आगे भी है कि अगर अपनी बीवी के हुकूक पूरे नहीं कर रहे तो वो भी इसमें आ जाता है।
वो इसमें भी है, हाँ, कॉन्जुगल उसमें राइट्स भी- अगर आप पूरे नहीं कर रहे हैं तो वो भी ओके। आ जाएगा। अच्छा, ये पता नहीं है लोगों को, ठीक है। अब जिस पे पढ़ती है पता उसे चलता है। कल मैंने कोई कंप्लेंट फाइल की हुई है डोमेस्टिक वायलेंस की, उन्हें मालूम है कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस आ रहा है, दिस इज अ वेरी प्रोमिनेंट फैमिली। अब तक तो उन्हें समझ नहीं आया था कि वकील साहब सीरियस हैं इस केस में, क्योंकि मैंने उनको एक आध लीगल नोटिस भेजा, उन्हें लिफ्ट नहीं कराई। कल उन्हें शाम में जब ये समझ में आया है तो अब मशीनरी जो है वो एक्शन में आ गई है कि रेकंसिलिएशन की तरफ आते हैं। तो मैंने कहा रेकंसिलिएशन की बात तो हम बहुत पहले से कर रहे थे, अब आपको समझ उस वक्त आएगा जब मैं आपको मैजिस्ट्रेट की अदालत में बुलाऊंगी, ठीक है। अच्छा, डोमेस्टिक वायलेंस से निकलने के लिए ये भी मैं बता दूं कि सिविल रेमेडीज में रास्ता निकलने का होता है, फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन होते हैं, इसमें तो आपने जाना ही जेल है। एग्जैक्टली, ठीक है। हाँ, मैं एक बहुत एफ्लुएंट फैमिली की किस्से बता रही हूँ। दो किस्से तो मेरे बहुत ही यूनिक मैंने सुने। मैं ये रुक जाइए, जो किस्से है ना ये मैं, और जो इस्लाम, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने बीवी को मारे थप्पड़ तो उसकी थप्पड़ का भी दियत है, ये आप लोगों को शायद पता नहीं है। नहीं पता नहीं है, एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं मच आइएगा। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।